today's class? 17 participants are there. Chal. So yesterday I started basic solution. बताइए what is basic solution? Basic solution. Just a small recap of yesterday class. दायान खान आप बताइए how to find basic solution of a system of linear equation. सर वो क्या कहते हैं जो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मान लीजिए ए एम इंटू एन और एक्स एन इंटू वन इज इक्वल टू बी एम इंटू वन की फॉर्म में जो लिख के सर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं सर। तो सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकालेंगे? सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकालेंगे कि वो आपका बेसिक सॉल्यूशन कराएगा? सपोज सर एन एन एम जो वेरिएबल है वो सर बी कॉलम में पुट करके जो एसोसिएटेड ना हो उसके जीरो के बराबर रखेंगे तो सर वो क्या कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन आ जाएगा। एन अननोन्स है सपोज एंड एम कॉन्स्टेंट्स है आपके पास, ओके, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट एम इज लेस देन एन. So what we will do, we will take A is a matrix because it's a coefficient matrix. You can construct a coefficient matrix from this system of linear equation. So this will be a m cross n matrix, है ना? Because m constants है, so you have m rows, n columns. So you have A m cross n matrix. So I will take a sub matrix B m cross m, है ना? And taking n minus m variables, because you have number of unknowns more than number of constants, so n minus m variables, है ना, putting to 0. These variables they called non-basic variables. Okay, and then solving the system of equations. So the solution which will come, it is called basic solution. So let us take one problem, it will explain it more clearly. Problem number 401 I am taking. Obtain all the basic solutions to the following system of linear equations. System is given to you x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 4, 2x1 plus x2 plus 5, x3 is equal to 5. Okay, this is a system of equation given to you. So here you can see 3 unknowns and 2 constants, है ना? You have here n is equal to 3 and m is equal to 2. Okay, so you can construct your coefficient matrix. Your coefficient matrix will be what? A, if you will see here, so it will be a 2 by 3, 2 rows, 3 columns, 1 2 1 2 1 5. This is your coefficient matrix. This is your x. I can write your variables. I will write it in a column, and b also I can write in column 4 5. The system can be written as ax is equal to b. You know this thing. So now x3 रह गया. x3, sorry, x1 x3 sir. Yes, 3 variables here, x1 x2 x3. So now I will take sum matrix. Sum matrix will be of m cross m, 2 by 2. So you know it's a 2 by 3. So how many possibilities are there? There are NCM possibilities for sum matrix. 2 by 2 कितने sum matrix ले सकता हूँ? I can take first 2 columns, I can take last 2 columns, and I can take first and third column. So total there are 3 C2, है ना? You can find by this number of sub matrices. Number of sub matrices. 3 C2 means 3. So I will take one by one. Suppose firstly I am taking
first two columns. So B may be, है ना, ये पहले लिख दीजिए आप. So possible submatrices are, so first two, if I am taking first two columns, so it is 1 2 2 1 1 2 2 1. It will be coming when you are putting x3 is equal to 0, है ना. What we do, we put x3 0. So when x3 0, you will take this. And then 1 1 2 5 and no 1 1 2 5 and last one is 2 1 1 5 2 1 1 5. These three possibilities are there, है ना. First thing, you will always write all the possible submatrices of M cross M order. So firstly, if I am taking this will be coming when you are putting non-basic variable x3 is equal to 0, है ना. तभी तो आएगा ये जब हम x3 को 0 रखेंगे. So putting x3 is equal to 0, we get first sum matrix. We get first sum matrix. That means 1 2 2 1. So I will solve this system. So this system is, now you will be having x1 plus 2x2 is equal to 4, x1 plus 2x2 is equal to 4, and 2x1 plus x2 is equal to 5. 2x1 plus x2 is equal to 5, है ना. You know this thing, I have to put x3 some value here because it is three unknowns. I cannot solve this system equation unless until I have some value of x3 या x2 या x1. One variable will be a free variable, है ना. Number of free variables कैसे आते हैं, n minus m. 3 minus 2, 1 is free variable. Free variable का मतलब क्या होता है, you have to put some value for this free variable. So we are put, for finding basic solution we put is equal to 0. So x3 0 put किया हमने, तो you will be getting one equation. Now it is easily solvable. Two unknowns, two equation, है ना. You can solve it by taking substitution method, multiplying by 2 both sides and then solving. इसको आप solve कर लेंगे direct, so it is coming x1 2 and x1 is equal to 2 and x2 is equal to 1, है ना. So these are the basic variables. This is the non-basic. This is 0 put किया, that is non-basic. These two are basic variables, है ना, basic variables. Similarly, for second, I can put 1 1 2 5 matrix का putting 1 1 2 5 कब आएगा, 1 1 2 5 putting x2 is 0. हाँ, ध्यान रखना, जिसे हम 0 पुट करते हैं, it is called non-basic variables. These terminology are important because I will be using it in the simplex method, which I will use for solving linear programming problem for more than 2 variables. So now putting x2 0, so you will be getting system equation now. X2 0 is x1 plus x3. So you got x1, we get x1 plus x3 is equal to 4, and 2x1 plus 5x3 is equal to 5. Solving this system equation by any method, it will give you how much? X1 is 5 and x2 is, x3 is equal to minus 1, है ना. So one solution, this is the one solution, x2 0, x1 5. And similarly last, because three possibilities are there, putting x1 is 0, we get, when you put x1 0, you will be getting 2x2 plus x3 is equal to 4, and x2 plus 5 x3 is equal to 5. Okay, so I got is equal the solution. इसको solve कर लेंगे आप, it will be giving you x2 is 5 by 3 and x3 is 2 by 3. Okay,
So these are the solutions which you find here. Now I discuss also that solution degenerate solution. A solution is called degenerate solution if basic variable is also coming zero, है ना. नॉन बेसिक तो हमेशा जीरो होगा ही. If you are getting basic variable zero, then it is called degenerate basic solution. So here you are not getting in any possibility basic variable is not zero, है ना. So all the solutions are non degenerate solutions, है ना. Here you can see all the basic solutions are non degenerate. Here all the three basic solutions are non degenerate, है ना, as none of the basic variables vanishes. किसी कोई भी जीरो नहीं आया, है ना. It is called basic solution. It will become basic feasible solution. Basic feasible solution. Basic feasible. In short, I will be writing BFS. Basic feasible solution. What it will be basic feasible solution? Mohammad Faisal. Any idea when a basic solution is feasible? Zafar Iqbal. कुछ आइडिया बताइए. When a basic solution is basic feasible solution. सर नहीं पता. नुमान अली, नाम इसके नेम को ध्यान से सोचो तो समझ में आ जाएगा आपके. बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन. अभी तक हम बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, अब मैं कह रहा हूं बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन. कादिर जफर. जी सर. बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन कब कहेंगे? आइडिया नहीं सर. भाई क्या वर्ड ऐड हो गया इसके अंदर? व्हाट एक्स्ट्रा वर्ड? Feasible. फीजिबल. इसका मतलब क्या हुआ? a basic solution. सर कंप्लीट ना हो जो. A basic solution which is also feasible. भैया basic solution which is also feasible means which satisfies feasible conditions. Feasible conditions क्या बताई थी आपको मैंने? Feasible means what? Always in the फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना. भाई feasible condition क्या होती है कि all the variables should be greater than equal to zero. They are always non-negative. So if all the basic, क्योंकि basic feasible solution है, तो if all the basic solutions are non-negative, it is called basic feasible solution. भाई basic solution में एक टर्म आपने ऐड किया तो जाहिर है इसका यही प्रॉपर्टी तो लेके आएगा. तो आप feasible solution to an LPP which is also basic solution, है ना. This is called a basic feasible solution. भाई अगर आप नाम ध्यान से देखें, बहुत सी डेफिनेशन मैथमेटिक्स में उसके नेम से ही एक्सप्लेन हो जाती हैं कि व्हाट द न्यू टर्मिनोलॉजी आई एम यूजिंग. तो हियर यू कैन सी द फर्स्ट सॉल्यूशन जो था आपके पास यहाँ पे इस प्रॉब्लम में. सॉल्यूशन क्या है? आपके बेसिक वेरिएबल्स क्या आए थे? सारे पॉजिटिव आए थे. देखिए x1 वाज पॉजिटिव 2, x2 वाज पॉजिटिव, है ना, मतलब नॉन नेगेटिव, और x3 जीरो था. नॉन बेसिक तो जीरो होगा. तो ये जो सॉल्यूशन था आपका 2 1 0, इट इज बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन? बताइए.
your basic variables which are coming, they are non-negative or not? Basic sir. feasible solution. Basic feasible solution. है ना? So here you can see. Yes, sir. Here you can see because it is positive. It is positive. I will just look at the sign of basic variables. Both are non-negative. है ना? Yes, sir. This solution is basic feasible solution. You can write here. This is basic feasible solution. What about this? x1 नहीं is है सर, 5 but x3 is -1. It is negative. नहीं होगा, So it feasible is नहीं होगा. infeasible. दोनों नहीं है सर है ना? लास्ट के. हाँ. Yes, sir. It is what? Infeasible. You can say it is not a basic feasible solution. It is not BFS. ये वाला क्यों नहीं है भाई दयान साहब? इसमें क्या प्रॉब्लम है? 2/3 आ रहा है सर. तो क्या हो गया? 2/3 is not Yes, sir, है non-negative. ये Non-negative नहीं है 2/3 क्या? feasible solution होगा सर. हाँ सर हो जाएगा. ये भी बेसिक फ्रैक्शन से प्रॉब्लम कोई है? नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना? So in this way you can get basic. बस एक टर्म ऐड कर दिया हमने तो वो आपका feasible बन गया. Okay? So these two are basic feasible solution and you can see all are नॉन डीजनरेट. इसी में अगर कोई जीरो आ जाता तो आपका डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन जाता. ओके जी सर. नेक्स्ट वी हैव इम्प्रूव्ड बेसिक एसोसिएटेड कॉस्ट वेक्टर. डेफिनेशन है एसोसिएटेड कॉस्ट वेक्टर. चलिए ये लिख लीजिए. एसोसिएटेड कॉस्ट वेक्टर क्या हुआ? सपोज यू हैव some objective function maximize of या minimize whatever cx subject to ax is equal to b and x all non-negative. Then the vector c है ना, it is called cost vector which is associated with the x. अब ये cost vector कितने होंगे? जितने वेरिएबल्स होंगे, है ना. ये तो होता है अगर 2 वेरिएबल्स है तो आप व्हाट यू राइट नॉर्मली c1 x1 plus c2 x2. तो दिस c अगर मैं इसे cb से लिख दूं, द वेक्टर cb की फॉर्म में अगर हम लिख दें तो जो कॉस्ट वेक्टर्स आएंगे यहाँ पर, है ना, सपोज c1 c2 एंड सो ऑन, ये कितने होंगे? ये x पे डिपेंड करेगा. इफ यू हैव n अननोन्स तो इट विल बी n. दिस इज कॉल्ड एक्चुअली cost vector associated with the basic variables solution, है ना. c1 c2 cn. So these are the components of c associated with the basic variables. So you can see that the is called the cost vector associated with the basic feasible solution xb. जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें जो आपके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस के जो कोएफिशिएंट्स होंगे ना, ये उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ध्यान रहे. तो इसलिए cb1 लिख सकते हो इसको, cb1 cb2 cbn, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट वैल्यू होंगी वो नॉन बेसिक की भी होंगी साथ में. when you will be solving suppose c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3, तो x3 will be suppose अगर नॉन बेसिक and c1 c2 will be for basic, तो c1 c2 is called the cost matrix, क्योंकि c1 c2 जो है यही आपके सॉल्यूशन में इफेक्ट डालेंगे. x3 की वैल्यू तो 0 है तो इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इफेक्ट किसका होगा? सिर्फ बेसिक वेरिएबल्स का जो आपके सॉल्व होके आएंगे, क्योंकि जो चीज 0 आ गई इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सर इसका नाम क्या है? एसोसिएटेड कॉस्ट वेक्टर. हाँ, इसका नाम है एसोसिएटेड, इसका नाम है कॉस्ट वेक्टर, एसोसिएटेड कॉस्ट वेक्टर, क्योंकि एसोसिएटेड है विद द बेसिक वेरिएबल्स. Then improved basic feasible solution. Improved. So improved means what? If you are having suppose 2 feasible solution,
ना. Suppose you have two xb and yb. Suppose you have these two feasible solution. ऐसे भी हमने पीछे देखे, in the last problem we were having 3 feasible solutions. 3 थे. So which one is improved? Suppose you have xb yb be the feasible solution, then to the LPP, of course, to the LPP जो भी आपकी given LPP है, then YP is improved basic feasible solution if your objective function, suppose CBYB है ना, you are putting this CBYB, ये CB बार लगा दो यहाँ पर, इसके कोएफिशिएंट कुछ होंगे, this is greater than equal to CB XB है ना. आपने YB के लिए वैल्यू रखी, वो कुछ वैल्यू आएगी निकल के कॉस्ट वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके, इट इज कमिंग सम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हियर इट इज कमिंग सम वैल्यू. तो इफ इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस CBXB. अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी तो इट विल बी इम्प्रूव्ड if CBYB less than equal to CBXB. So which is giving you the maximum value in the case of maximization problem. Normally I am assuming maximization problem. So it will call improved basic feasible solution. It is improving your solution. ना, क्योंकि maximization problem में क्या होगा, you want maximum profit. तो उसमें we will be checking different basic feasible solution, which is giving you higher value. It will be improved. इससे कोई higher आया, that will be again improved. And similarly at the last you can find optimal. So what is optimal? Which is giving you the highest value and optimum value. It will be called optimum basic feasible solution. So when it will be, so a basic feasible solution XB is called optimum basic feasible solution. Remember, I am assuming maximized type problem for maximization problem. जैसे आप मिनिमाइजेशन करेंगे सारी इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएंगी, बस इतना फर्क पड़ेगा. तो a basic feasible solution XB is called optimum basic feasible solution if its value, if you are finding suppose Z0 is equal to CBXB है ना. CBXB रखा आपने तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जाहिर है प्रॉफिट होगा कुछ. CBXB this should greater than equal to Z where ये Z स्टार लिखा हुआ बुक में, Z स्टार लिख लीजिए, where Z स्टार is the value of the objective function for any other feasible solution है ना. मतलब क्या हुआ कि ये जो Z0 है, it will be always maximum greater than equal to Z star, where Z star is the value for any other. जितने भी feasible solutions निकल के आए आपके पास, उन सब में Z0 is the highest. ये आप करते हैं ग्राफिकल मेथड में, ग्राफिकल मेथड हम ये देखते थे मैक्सिमाइजेशन में, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू आ जाती थी उसी को हम अज्यूम कर लेते थे कि इट इज द ऑप्टिमल वैल्यू. अब वो ज्यादा भी आ सकती है, मोर देन 1 भी आ सकती थी, दैट इज द केस ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्टिमा. Z स्टार की इक्वल भी हो सकती है या उससे ज्यादा होगी, है ना. इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं मैं आपको आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द PDF, तो आई एम राइटिंग दिस पेज नंबर, प्रॉब्लम नंबर 403, पेज नंबर 89. सर इम्प्रूव्ड वाली नंबर बता दो. इम्प्रूव्ड में ये है
Improved means what? Improve का मतलब क्या होता है? If you are solving some maximization problem, so improve means what? You are putting one basic feasible solution, you are getting some value of z, है ना? जैसे यहाँ पर हमने 3 values निकाली, है ना? We solved here 3 basic feasible solutions. तो आपने पहले वैल्यू पुट सब वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका कुछ मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3. So you will be putting c1 c2 c3 will be given, है ना? Some constants 4 5 जो भी होंगे. तो यू आर पुटिंग x1 x2 एंड x3. सपोज इसकी वैल्यू निकल के आ गई 10. फिर आपने नेक्स्ट वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू निकल आई आपके पास 12. फिर नेक्स्ट रखा, इसकी मान लिया वैल्यू हो गई 5. तो 12 इज बेटर देन 10, 10 इज बेटर देन 5. So it means what कि we are getting improved. So this first one is improved than third one. अगर ये 10 है और ये 5. तो ये सर ये फिर मैक्सिमम के केस में होगा ना, मिनिमम के केस में जो सबसे कम होगा वो इम्प्रूव्ड होगी? जी जी, तो वही तो मैंने आपको बताया, आपने सुना नहीं कि तो सर फिर ऑप्टिमल और इम्प्रूव में क्या फर्क हुआ? ऑप्टिमल का मतलब ये हुआ कि बेस्ट वैल्यू. इम्प्रूव में तो ये है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑप्टिमल, है ना? इम्प्रूव का क्या हुआ कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑप्टिमल वैल्यू. जैसे पहले 5 आया, फिर 10, फिर 15, फिर 20. तो 5 से बेटर 10 है तो 10 विल बी कॉल्ड इम्प्रूव्ड, 20 विल बी कॉल्ड इम्प्रूव्ड देन 10, और फाइनली मान लीजिए 50 आपका हाईएस्ट है, तो 50 इज द मोस्ट इम्प्रूव्ड वैल्यू एंड इट इज द ऑप्टिमल वैल्यू. ठीक है? ठीक है सर. हाँ, ठीक. तो जो ऑप्टिमल वैल्यू है इट इज द फाइनेस्ट वैल्यू, मतलब द लास्ट इम्प्रूव्ड वैल्यू. उससे आगे हम इम्प्रूव नहीं कर सकते उसको. या मिनिमाइजेशन में क्या हो जाएगा, जो मिनिमम होगा 5 10 15 20. तो 5 is the optimal in case of minimization problem, है ना? तो वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है. अगर प्रॉफिट की प्रॉब्लम है तो यू वांट टू इम्प्रूव द प्रॉफिट, तो उसमें मैक्स आप प्रॉफिट बढ़ाएंगे. कॉस्ट की वैल्यू प्रॉब्लम है, कॉस्ट है या लेबर है, उसको आप कम करना चाहेंगे तो वहां पे आप मिनिमाइज की तरफ जाएंगे कि कॉस्ट कम होना चाहिए प्रोडक्ट का ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो. ठीक है. इट विल डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, व्हाट द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, है ना? व्हाट द रियल लाइफ प्रॉब्लम इज देयर. तो दिस 403 प्रॉब्लम नंबर पेज 89 पे होम असाइनमेंट है, इसको आप ट्राई करिएगा. एक प्रॉब्लम है, ये सिंपल है. फाइंड ऑल द बेसिक फिजिकल सॉल्यूशंस. देन नेक्स्ट, there are some properties in the form of theorems. So I have omitted the proof, I am taking the statement only. Proof में एक theorem का करूंगा जो important theorem है आपकी, which is called fundamental theorem of linear programming problem. But उसके लिए I will be needing 2 theorems. तो एक theorem आपकी ये I think 4.1 है, पेज नंबर 90 पे. इसका स्टेटमेंट सिर्फ मैंने लिया है, कैलकुलेशन आप अगर देखना चाहे देख सकते हैं, बट इस proof is not in your syllabus, so I am not going to ask the proof also. लेकिन इस statement is important. If an LPP, एक्चुअली जो मैं प्रूफ थ्योरम्स लिख रहा हूँ ये सब हम कर चुके हैं ग्राफिकल मेथड्स में और पीछे, है ना? If an LPP has a feasible solution, then it also has a basic feasible solution. Okay, it is called, इस थ्योरम को लिखा हुआ है स्टेटमेंट के, रिडक्शन ऑफ अ फिजिबल सॉल्यूशन टू अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. फिजिबल सॉल्यूशन से हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं. वी कैन मूव टुवर्ड्स. तो अगर किसी एलपीपी का फिजिबल सॉल्यूशन है ना, तो इट विल आल्सो हैव अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी जरूर होगा, है ना? इट इज अ थ्योरम. इसके ऊपर एक कॉर्लरी है, ओनली स्टेटमेंट है आपका उसमें, ओनली स्टेटमेंट रूप बुक में दिया हुआ. वैसे अगर आप देखना चाहें तो आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं. इन्होंने एलपीपी कंसीडर करी है, मैट्रिक्स फॉर्म में उसे सॉल्व किया है. इस पे बेस एक कॉर्लरी है. देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस टू एन एलपीपी, है ना? There exists only finite number of BFS. ये कॉर्लरी है.
कि फाइनाइट नंबर होंगे, है ना, क्योंकि आपने देख लिया कि आपके पास जब भी सिस्टम इक्वेशन दे रखी होगी तो देयर विल बी सम n अननोन्स और m वेरिएबल्स। तो आपके पास बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन जितने भी आएंगे यू कैन फाइंड NCM होंगे हमेशा, है ना। अभी हमने पीछे चेक किया 3C2 थे, दैट मींस 3 थे, तो दे विल बी ऑलवेज फाइनाइट। सर हाँ सर ये बेसिक सॉल्यूशन जो आएंगे ये इस पे क्या गारंटी है कि यही मतलब z की ऑप्टिमम वैल्यू होंगी? हाँ, यही आपकी जो है थ्योरम आ रही है अभी आगे, जो आपने पूछा ना वही थ्योरम मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सर क्योंकि इसमें एक टर्म तो 0 ही कर दे रहे हैं हम। हाँ, ऐसे भी तो हो सकते हैं जिसमें कोई भी टर्म 0 ना हो। तो यही तो मेथड है आपका। इस मेथड में हम जब 0 पुट करेंगे ना तो जो सॉल्यूशन आएगा तो वो सॉल्यूशन हो सकता है कि वो ऑप्टिमम नहीं हो, तभी तो हम ऑप्टिमम देखते हैं कि फिर दूसरा देखेंगे कि जिसको 0 पुट किया क्या वो बेटर आ रहा है। अगर वो नहीं है तो नेक्स्ट जिसको 0 पुट किया उसे देखेंगे, है ना। और सर अगर कोई ऐसा हुआ जिसमें तीनों ही 0 होने पर ऑप्टिमम ना हो वो? नहीं, तो तीनों में से कोई एक वैल्यू तो बेस्ट मिलेगी, या तो तीन इक्वल आ जाएंगी या कोई एक कम होगा। ऐसा कोई है कि कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। इफ यू आर गेटिंग और 3 सर नंबर्स, यस। सर एक ऐसा केस भी तो हो सकता है ना जिसमें तीनों वैल्यू रखने पर बेस्ट मिले हमको, वो तो हम मिस ही कर देंगे ना फिर इन केस में। नहीं, तीनों वैल्यू रखने में मतलब बेसिक सॉल्यूशन में तो सर हम एक वेरिएबल को 0 कर रहे हैं ना, जैसे x3 को हमने 0 कर दिया जी जी तो एक ये केस हो गया, और एक x2 को 0 कर देते हैं, एक दूसरे के बाद एक में x1 को कर देते हैं। जी अगर हम जी। तीनों में से किसी को 0 ना करें और वो वाली वैल्यू सबसे बेस्ट हुई फिर? तो वो बेसिक सॉल्यूशन नहीं कराएगा ना। बेसिक सॉल्यूशन के लिए हमें एक को 0 पुट करना पड़ेगा। और आप ये तो क्यों सर सोच वो रहे हैं, उन वाली इसमें ये भी तो हो सकता उन है कि वाली आपने कोई वैल्यू रखी है वो और वेरिएबल को कम कर दे, ये भी तो हो सकता है। भाई आप जब सॉल्व कर हाँ रहे हैं, वो भी। है ना, आपने x3 को कुछ तो रखा, सर वो मान लीजिए x2 आ गया आपका 5 माइनस x3, तो उसमें तो कम कर देगा वो उसे। तो यही तो मेथड है हाँ सर, कि हम एक तो वेरिएबल सर को, वो एस जी, तो उसको भी तो सर हमको लेकर चलना चाहिए ना इसमें। नहीं तो उसको हम अगर लेके चलेंगे तो वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। बेसिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन यही है कि आपको एक वेरिएबल को 0 पुट करना है ना, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट द वैल्यू वी शुड पुट हियर। अगर आप रैंडमली कह रहे हैं तो हो सकता है वो बढ़ा दे, हो सकता है घटा दे, हमें पता ही नहीं कुछ। तो जिसके बारे में हमें नहीं पता तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी वेरिएबल को 0 कर दो और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता ठीक है सर। है ना। थ्रू द प्रोसीजर वी वांट टू फाइंड द बेस्ट वे, बेस्ट आंसर। तो हम ये टेक्निक निकालते हैं कि किस तरीके से हमें बेस्ट रिजल्ट मिल जाए, है ना। ठीक है सर। हाँ, एरर पॉसिबिलिटी है, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है कि बिल्कुल बेस्ट ना हो। सो थ्योरम 4.2 बाई लेस देन अ मिनट इज देयर। और इसके बाद चलो बेट, इसके बाद मैं कंटिन्यू उधर नेक्स्ट इसमें करूंगा क्योंकि फिर मेरी नेक्स्ट क्लास 10:45 पर भी है आज। तो एक्सट्रीम पॉइंट करस्पॉन्डेंस, एक्सट्रीम पॉइंट करस्पॉन्डेंस। A basic feasible solution to an LPP must correspond to an extreme point, to an extreme point of the set of all feasible solutions, है ना। जो हम ग्राफिकल में करते थे तो मैंने आपसे कहा था कि हम we will check at all the extreme points, set of all feasible solutions, and conversely means what? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू एन एलपीपी मस्ट करस्पॉन्ड टू एन एक्सट्रीम पॉइंट। जो भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएंगे वो किसी एक्सट्रीम पॉइंट से